students now. Settle down, right? So our first question is. What happens when? Now our first question, students. Please. Teacher, you are requested to maintain the decorum. Present in the class, please look into the discipline part. What is the problem in class 9A? Can you confirm what is the issue? Problem? Can you hear me? What is the problem, ma'am, and why so much indiscipline in the class? Please maintain the discipline. The measure of an angle which exceeds its complement by 30 degrees. Choices are, students, 150 degree, 120 degree, 60 degree, and 80 degree. So this is the question. Please do this question, students. The measure of an angle whose and which exceeds its complement by 30 degree. Now, Hanji, tell me what is the answer, students? Yes. What do you mean by complement? Right, students. So the complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. Now let's say we have two angles, X and Y. Their sum is 90 degree. Right? Now what is given? We have to find the measure of an angle which exceeds its complement by 30 degree. Let X is the complement of Y, means X exceeds its complement by 30 degree, means X is 30 degree more than Y. Is it clear? So now what will be the measure of these two angles? तो बच्चे X की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे आप, Y plus 30 plus Y equal to 90 degree. So लीनियर इक्वेशन बच्चों आप लोगों ने सॉल्व की है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको. So 2y is equal to 60 degree. 2y is equal to 60 degrees. Is this clear or not? So y becomes equal to 60 by 2, that is 30 degree. So but we have to find out x. So what will be the value of x? 30 plus 30, that is 60 degree. Is it clear, bachcho? So see, one angle is 60, another is 30. So x is 30 degree more than its complement. What is its complement? 30 degree. So 30 plus 30 is 60. Is it clear? Any doubt? You can ask the question, bachcho.
Next question, students. The measure of an angle which is twice its supplementary. The measure ये जो x is equal to y plus 30 है वो कैसा है? हाँ जी बच्चे, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए बेटा. एन एंगल विच एक्सीड. एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड? मोर का मतलब होता है बच्चे मोर, राइट? x is 30 degree more than y and x and y are complementary angles. x is 30 degree more than y और x और y का सम 90 डिग्री है. समझ में आया बेटा? नहीं आया? Yes or no? No. What is not clear? Please clarify. You know what are complementary angles? Yes. दो एंगल का सम 90 होता है, राइट बच्चों? अब अगर x और y का सम 90 है, so what is the meaning of this? x is complement of y and y is complement of x. Yes. Yes or no? Yes. Now what he says, one of the angle is 30 more than the other, means x is 30 more than y. यहाँ तो कोई डाउट बचे? No. Now this angle, this is x plus y. These two makes 90 degree. Yes or no बचे? Yes. तो लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व की है. आपको बच्चे लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है ना हमने? इज इट क्लियर? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बचे नेक्स्ट पे चलते हैं. मतलब द मेजर बच्चा देखिए, आपके जो भी डाउट है प्लीज आस्क, बट नो टॉकिंग. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना प्लीज आस्क. आई विल रिप्लाई एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. नहीं चाहिए मुझे सेक्शन बी में. बेटा नो डिस्कशन, नो डिस्कशन. 9B, 9 that girl जिसके पास माइक पड़ा है, she is talking continuously. She is talking continuously. क्वेश्चन बच्चों, the measure of an angle which is twice its supplement. क्या बात है? उसको मत बताओ, सामने से को बताओ. सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो. Yes. हाँ जी, कौन बताएगा? बताइए बेटा, बताइए कौन बताएगा? यस, देखिए बेटा, लेट्स से x and y are supplement of each other. Is this clear? Now what he says, one angle is twice of other, means let's say x जो है, this is twice of y. X is twice of y. So what does mean? X plus y is equal to 180 और y किसके इक्वल, x किसके इक्वल है बेटा? 2y के. तो x के प्लेस पे हमने 2y रिप्लेस कर दिया
2y plus y is equal to 180. 120 degrees. जी? क्या बेटा? Sir, its answer is 120 degrees. 120 degree is right answer बेटा. Very good. ठीक है जी. तो 3y is 180, y is 60 degree. So what will be x? 2y, 2 into 60, that is. Now one angle is 60 degree, another is 120, twice of 60. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग. The measure of two supplementary angles. If the measure of two supplementary angles are 3x plus 15 degree and 2x plus 5 degree. Then x is equal to फाइंड आउट करनी है बच्चे. 32 डिग्री 4 ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, बड़ा इजी है बेटा. प्लीज डू इट. Sir, 32 degree. 2 डिग्री आ रहा है जी. 32 degree. चेक कर लेते हैं बेटा एक बार. देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री 180 डिग्री होता है जी. Yes. तो 180 करके इक्वेशन को सॉल्व करना था बेटा. 3x plus 2x 5x, 15 plus 5 is 20. Yes, 32 degree will be the right answer बच्चों. 3x plus 5 है. 3x plus 15. 3x plus 15, 2x plus 32 degree is the right answer बच्चों. टेबल जोड़ रहे हैं. 32 degree is the right answer, right? किसी को कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो बच्चों you have to find the value of x. 20 degree. हाँ जी. X की वैल्यू 20 degree. 20 degree is the right answer. देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, so this makes the linear pair. So 40 plus 4x plus 3x will be equal to 180. आपने लिखना है लीनियर पेयर. इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी. डिग्री x will be equal to 140 by 7. It will be 20 degree. Right? Next question here.
हाँ जी, find the value of y in this. Yes, sir. Find the value of y. Find the value of y. सर हाँ जी, सर सॉल्व करने के लिए टाइम दे दो थोड़ा सा। आप मतलब सम देने के बाद आप जल्दी आंसर पूछ लेते हो। sorry beta, I'll give you some time. Basically what happened, the other students answer this question. वो जब आंसर कर देते हैं तो I thought कि it is clear, so you take your time, no issues, right? Fine. 54. $54. ओके बेटा वेट कर लो, आप बाकी लोग भी कर रहे हैं। आप ना आंसर ना बोला कीजिए बच्चे, आप हैंड रेज कीजिए, ठीक है कि इफ यू हैव कंप्लीटेड प्लीज रेज योर हैंड, सो आई कम टू नो वेदर यू हैव डन इट और नॉट, राइट? प्लीज गिव द टाइम टू अदर्स आल्सो। 54 डिग्री आंसर है। आ गया 54, मैंने अभी अभी बोल के हटा हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ दोबारा से, ठीक है कि अगर आपने क्वेश्चन कर लिया यू रेज योर हैंड कि आई हैव डन इट, डोंट प्रॉम्प्ट द आंसर, राइट? डोंट स्पीक द आंसर, ठीक है बेटा? कितने लोगों ने कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? वन, आई कैन सी ओनली वन हैंड। 2, 3, 4, 5, only 5 people. 6, 7, 8. चलिए, to do one thing, student in section 9A, सेकंड बेंच, सेंटर लाइन पे सेकंड बेंच पे जो 3 गर्ल्स बैठे हैं ना, इसका हैंड रेज है वो आ जाए बेटा, प्लीज यू कम। एक एक नहीं नहीं, आपको नहीं बुलाया बेटा, आपके साथ वाले, आपके जो लेफ्ट वाली गर्ल है लेफ्ट लेफ्ट, नहीं नहीं आपको नहीं बुलाया बेटा, आपको नहीं बुलाया, जो जो लेफ्ट साइड गर्ल है उसको। हाँ जी बेटा, प्लीज एक नहीं, अपनी नोटबुक लेके आओ, दूसरों की नहीं नोटबुक लेनी है। गिव इट बैक, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। हाँ जी प्लीज एक्सप्लेन। आंसर 54। आंसर नहीं मैंने पूछा, कैसे किया आपने, एक्सप्लेन करिए। देखिए स्क्रीन की तरफ देखिए, नो टॉकिंग प्लीज, लुक एट द स्क्रीन। सर थोड़ा सा रहता है। बेटा आपने हैंड रेज किया था ना, हैव यू और नॉट? सर यस। देन व्हाई यू हैव डन बेटा? सर थोड़ा सा रहता है तो बस वैसे। ये अगर आपका रहता था क्वेश्चन, देन व्हाई यू हैव रेज योर हैंड, पहले तो मुझे बताइए। आपने बोला कि सर ने सिर्फ आंसर पूछना है, आंसर मैं बता ही दूंगी, ठीक है ना? सर यस। अच्छा आप जो है ना, आप अपना ही लॉस कर रहे हो। यू डू योर क्वेश्चन विदाउट लुकिंग हेयर एंड देयर। यहाँ पे कोई आपको मेडल थोड़े मिलना है अगर आप जल्दी कर रहे हो। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन ए से कौन बताएगा बेटा, प्लीज आप बताइए बेटा, इस गर्ल के पास माइक रखा है।
Yes, you please explain 9A 9B sorry. कीजिए बेटा explain आप. कीजिए बच्चे explain. आपने नहीं किया. हेलो प्लीज आ जाइए आप बॉय आ जाइए बेटा साइड वाले बॉयज. 9B में 9B प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन हाउ यू हैव डन इट. हाँ बोलो बेटा. सर 54 डिग्री आंसर. आंसर तो मुझे पता चल गया बच्चे कैसे आया है वो एक्सप्लेन कीजिए. और सर पहले 3x + 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री. बच्चों देखिए दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ये जो दोनों एंगल्स हो जाएंगे दिस मेक्स द लीनियर पेयर. फर्स्ट यू मेक द सम ऑफ दीज टू एंगल्स एज 180 डिग्री. राइट लीनियर पेयर ब्रैकेट में आपको लिखना होगा लीनियर पेयर. राइट देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. कितनी वैल्यू आ गई x की बच्चों यहाँ पे 36 degree. 36 degree. Now you come to the top of the line. Now these three angles makes the linear pair. Yes. Angle is 90 degree. This means x plus 90 plus y is equal to 180. Put the value of x. 36 plus 90 plus y equal to 180 degree. Sum of these two becomes 126 degree. So y is equal to 180 minus 126 degree. So y is equal to 54 degree. Right? Is this clear? Any doubt to any students? Please let me know. First आपने नीचे वाला लीनियर पेयर लिया, देन आपने ऊपर वाला लीनियर पेयर लिया. नीचे वाले लीनियर पेयर से आपके पास x की वैल्यू आ गई. Then you can use the value of x here to find out the value of y. Is it clear? Is it clear बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. Yes, student. This is x, this is y, this is z. Right? This is clear. The ratio of x, y, z is equal to 4:5:6. Find the value of y. Please do it. अरे एक की 72 और एक की 60 एक की 60. Boys in the section 9B, please do yourself. आप अपना कीजिए बेटा, दूसरों को मत बताइए please. If you have done it, please keep quiet. You can raise your hand. Right? I'll ask any one of you. Any teacher present in the section 9B? Is there some teacher in the section 9B? सर आंसर 60. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्लास में टीचर हैं कोई अवेलेबल? Is there some teacher in your section 9B? Yes. Ma'am or sir is there? Can you hear me?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How can I help? The request to you, please maintain the discipline in the class. Okay, sir. Class. Actually, sir, during when they solve the sum, they discuss with each other. I can understand their excitement. Please keep quiet. Don't discuss real. हाँ जी बच्चे, सेक्शन 9A हो गया. Yes. How many of you have done? कोई दो चार बच्चे आगे वाले कर रहे हैं, पीछे वालों ने नहीं किया. बेटा, again you have to apply the concept of linear pair here, right? Since the ratio of the angle XYZ is given, ratio is given 4, 5, 6. What you can do? The ratio is given 4, 5, 6. So you can take X as 4K, Y as 5K, and Z as 6K. Now, since these three angles are linear pair, so add them. 4K plus 5K plus 6K, 180 degree. So you add them. This becomes 15K is equal to 180 degree. So the value of K comes out to be 12. right. So we have to find Y. So Y is 5K. 5 into the value of K is 12. So it comes out to be. Take here, please note down how to do this question with the ratios. Right? चलते हैं जी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. फिगर गिवन है बेटा. If OP is parallel to RS, angle OPQ is equal to 100 degree. Angle QRS is equal to 130 degree. Then find angle PQR. And the figure is given. The question. Right, students, please do this question. Please do this question. OP is parallel to RS. Yes, you have to find PQR. हाँ जी बच्चों, हो गया? How many of you have done? Section A has left. Section A has present. Section A, please switch on your video. Anji, how many of you are done? Section A, can you hear me? Section A, can you hear me? Have you done it? जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे. हाँ जी, हो गया. बताइए क्या किया बेटा इसमें. आंसर नहीं चाहिए मुझे. हाउ यू हैव डन इट. आंसर नहीं चाहिए. हाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन. कौन एक्सप्लेन करेगा? नो टॉपिक. हाँ जी, बताइए कैसे किया ये. कौन बताएगा? हाँ जी, बताइए जरा बच्चों.
Sir, first of all, we have to construct a line parallel. क्या करेंगे? If you don't want to do this, draw a line parallel to OP passing through. Let's say this is T. This is parallel to this. This is parallel to. So all these lines are parallel. Now this angle plus this angle. What is the name given to these angles? Co-interior angle. If these two lines are parallel, as इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आ जाएगी बच्चों. Draw TQ parallel to OP parallel to RS. Right बच्चों? Yes. No talking बच्चों, no talking. Angle OPQ and EQP is equal to 180 degree. Why? These are co-interior angles. These are co-interior angles. Co-interior angles क्या होते हैं बच्चों? If these two lines are parallel, तो ये जो एक साइड के एंगल होते हैं इनको बोलते हैं co-interior angle. The sum of two angles is 180 degree. So you get out this angle. ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा? डिग्री आ गया? Yes or no? हाँ जी बच्चा, ये आ गया? अब आपके पास this angle is 80 degree. Now this angle is 130. Let's say if I take this angle as x, this total will be 130. Yes, alternate angle. Alternate angle. So 80 plus x will be equal to 130 degree. X is equal to 130 degree minus 80 degree. X is equal to 130 minus 80. That will be. Is this clear, बच्चों? Down. बच्चे, any doubt in this question? Next question कीजिए जरा. Find the value of y in this. Find the value of y. 20 degree. Sir, 20 degree. Sir, 20 degree. कौन बोल रहा है 20 डिग्री? मैंने आपको बार बार बोला बच्चों, आंसर नहीं बताइए. अगर आपने कर लिया प्लीज रेज योर हैंड. देखिए, आप आंसर बता देते हो तो जिन बच्चों ने नहीं किया होता वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. वो फिर आंसर उनको पता होता है, आंसर को वर्कआउट करते हैं वो लोग कि आंसर कैसे आ सकता है, रादर देन अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आप आंसर बोल देते हो तो वो दूसरे लोग सोचते हैं कि आंसर कैसे आया है, वो ये नहीं सोचते कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है. देखिए बच्चों कैसे करना है इसको. देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, राइट. बट लीनियर पेयर का लगाने के लिए अगर आप ऊपर लीनियर पेयर लगाते हो तो आपके पास ये वाला एंगल नहीं. तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? See, these two lines are intersecting lines. So this angle and this angle are vertically opposite angle. Right? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? Let's say this point is O. Angle EOA is equal to angle BOF. ब्रैकेट में लिखेंगे vertically opposite angle.
Therefore, angle EOA is तो 20 है। किसने बोला बेटा 20? प्लीज रेज योर हैंड। किसने बोला है? प्लीज रेज योर हैंड। Who said this 20? तो ये 5A आ गया बेटा। तो अब आप यहाँ पे लीनियर पे का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। एंगल COE प्लस एंगल EOA प्लस एंगल AOD is equal to 180 डिग्री। दैट इज लीनियर पे। तो अब सबकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 2y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ गया बच्चों? 20 डिग्री। देखिए बेटा आप आंसर ठीक निकाल रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज डोंट टेल द आंसर विदाउट आस्किंग। आप क्या करते हो, दूसरे जो बच्चे ने जिन्होंने नहीं किया, यू आर डिस्टर्बिंग देम। गिव देम सम टाइम। आप फास्ट हो सकते हो, आप बड़ी जल्दी समझ जाते हो मैथ को, बट आवर पर्पस इज टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर बच्चे को समझ आना चाहिए, राइट? सो माय अगेन रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने कर लिया क्वेश्चन जस्ट प्लीज रेज द हैंड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, आंसर बता रहे हो इसका? अभी कोई बोल रहा था ना सर, मैंने कहा शायद आंसर बताने लगे हैं इसका। राइट बच्चों, this angle is 4x plus 12. This is 2x plus 24. Right? You have to find. Please do this. It's done. Yes. How many of you have done? Please raise your hands. Section A से कितने लोगों ने किया बेटा? Section A. हाँ जी, हाँ जी। सेक्शन बी वाली जो गर्ल स्टूडेंट है जिसने हैंड रेज किया है, माइक प्लीज स्टैंड अप बच्चे। अब मैं जो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर आंसर करना, राइट? ऑन करो माइक। हाँ जी, हाउ यू हैव डन दिस? आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर तो आपने। Sir, 4x plus 12x plus 2x plus 24x is equal to 180 degree. 4 integral angles. 180 डिग्री कैसे हुआ बेटा ये? Sir, because they both are 4 integral angles. हाँ जी Both are integral angles. बेटा, कहीं पे गिवन था ये पैरेलल लाइंस है? इज इट गिवन इट दीज आर पैरेलल लाइंस? Parallel. कहाँ पे गिवन, कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ? गिवन
गिवन। तो फिर आपने कैसे कॉन्सेप्ट लगाया बेटा ये? आप बताइए। यस, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन हो नन ऑफ दीज और यहाँ मेंशन नहीं है पैरेलल लाइंस, मेंशन है यहाँ पे पैरेलल लाइंस? सर उनके बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। दिखने से नहीं होता, देखिए फिगर में दिखने से क्या है, इज इट मेंशन, या तो एरो लगा होना चाहिए था। अब हो गई पैरेलल, ये पहले तो लिखी ना, यस और नो? तो बेटा जब भी क्वेश्चन को देखना है तो जस्ट सॉ इट प्रॉपरली, ठीक है? यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब क्या है, यहाँ पे गिवन नहीं था, आल्दो ये गिवन होना चाहिए था, आई एग्री। एंड वो क्वेश्चन भी तभी होगा अगर वो पैरेलल होंगे, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। प्लीज सिट डाउन, ठीक है? सो यू हैव टू टेक, नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन वही होगा बेटा, these two angles are, these two are parallel lines, therefore co-interior angles, the sum of these two will be 180 degree. So you can solve this equation, right? आंसर कितना आया? 24 डिग्री। एक्स आ जाएगा बच्चे 144 डिग्री बाय 6, that is 24 डिग्री। Is it clear? Is it clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब आ जाते हैं हमारे पास assertion reason type question। Assertion reason type, assertion is given Not of the A. Okay, beta, assertion is this. Now reason is, if two parallel lines are intersected by transversal, are intersected by a transversal, then pair of, आप लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, then each pair of co-interior angles are supplementary. ठीक है बच्चे, स्टेटमेंट समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन गिवन है इन फिगर पैरेलल लाइंस एंड एलएम, इसका डायग्राम देखिए बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, राइट? लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फिगर ड्रॉ कर लो आप, फिर मैं आपको असर्शन रीजन दिखा देता हूँ। फिगर पैरेलल लाइन L and M are
intersected by a transversal N, then x equal to 25 degree. Then is given if two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of co-interior angles are supplementary. So this is the reason. So now check whether assertion is true or reason is true or both are true, and R is the correct explanation of A or not. Yes. A मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होती है बेटा? R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So now if you look at the figure, in this, these two are co-interior angles, and their sum will be, what is their sum? 180 degree. So what is the value of it? 25 degree, right? So for according to assertion, the x is 25 degree. That is true. What concept we have used? These other lines, then the sum of co-interior angle is supplementary. So hence option A, that assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next question पे चलते हैं बच्चे. अच्छा, ये क्वेश्चन गिवन है. Assertion is in figure, if PQ is parallel to RS, then angle AC is equal to 90. Reason is if two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate angle are equal. Please check बच्चों. बच्चों हो गया क्वेश्चन? Yes or no? ये बच्चों हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. How many of you are done? Please raise your hands. Only 2 students. ये सेक्शन ए वाले नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोई भी नहीं कर रहा है. देखिए इवन है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है. Line parallel to PQ and RS passing through
See, please draw this line parallel. Now you can do this question. जिन लोगों ने नहीं किया, please do it now. Draw this line parallel. आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म में है। आपको एनसीईआरटी तो आनी चाहिए बेटा। एग्जाम कब है आपका मैथ का? फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई आप लोगों की? सही है। कब है बच्चे? सही है सर। 24 मार्च को पहला मैच है। 4th February, so it's not less than, is even less than 2 weeks, right? 2 weeks है आज पूरे। और अब एनसीईआरटी तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों। देखो अभी क्वेश्चन किया था ना हमने, if these two are parallel lines, these two angles are, कौन से एंगल है ये? वो इंटीरियर एंगल। तो लेट्स से एंगल इज x, राइट, दिस इज y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? What is the value of x? 40. What is the value of y? 50. Y 50. Y 50. Alternate angle बच्चे, alternate. This is 50. This will also be 50. और these two lines are parallel. तो y comes out to be 50. X is 40. तो दोनों का सम कितना हो गया? टोटल एंगल पूछा है ना, एंगल ACB टोटल विल बी x प्लस वाई। बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए एंगल ACD प्लस C, दोनों का सम 180 हो जाएगा। कोई सीरियल, so you can find out x will be 40 degree, y is alternate of 50, that is angle CDR। x और y आ गए, x और y का सम कितना होगा? 140 plus x is equal to 180, so angle x will comes out to be 40 degree, y will be 50, because y is alternate angle of angle RBC। ठीक है, is this clear? और what we have to answer? Angle x plus y. X plus y will be 90. So therefore this is correct. Now come to the reason. If two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate angles are equal. Is this true? This is also true. Is it the correct explanation? Is it the correct explanation, बच्चों? Is it the correct explanation or not? No. नहीं बच्चे, नहीं, को इंटीरियर का भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, सो A is true, A and R both are true but not the correct explanation, so choice B हो जाएगा आपका। Is it clear? Is this clear or not? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी सर। हाँ जी, क्वेश्चन है, if AB is parallel to EF, parallel to EF, आवाज नहीं बेटा। आवाज नहीं बेटा।
आपका दुकान में तो आना नहीं। हाँ जी आप भी बैठिए। राइट बच्चों, whether AB is parallel to CD and AB is parallel to EF. चेक करना है बच्चे हमें कि ये पैरेलल है या नहीं। Check whether AB is parallel to CD and AB is parallel to EF. So yes, हो गया है नहीं आता है। हाँ जी, यस किसके लिए यस है? इसके लिए या इसके लिए या दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए कैसे? कैन यू एक्सप्लेन मी? सर जो AB है वो जो CD के पहले एक्स करेगी, जो ABC एंगल है और BCD वो अल्टरनेट एंगल है, वो इक्वल है। हाँ जी बेटा, देखिए दिस एंगल एंड दिस टोटल एंगल इज सेम, इक्वल. So therefore AB and CD are parallel because this is a transversal, and if the pair of alternate angle is equal, the lines are parallel. Okay, second क्यों है बेटा? Why AB is parallel to EF? AB और EF कैसे पैरेलल है? सर क्योंकि जो 150 और 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 और वो कोइंसिडेंट है। हाँ जी, जो 150 plus 30 is equal to 180 and they are coincident and the sum of coincident is 180. हाँ तो बेटा ये AB is parallel to EF प्रूव करना है. बताइए जरा. We have to prove AB is parallel to EF. आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, आपने थोड़ा सा कनेक्शन लगाना है. क्या कि आपने पहले प्रूव कर दिया है AB is parallel to CD. Yes, and then CD is parallel to EF. So therefore AB will be parallel to. Yes, समझ में आया? मुझे पहले हमने ये प्रूव किया कि this alternate angles are equal, so this AB is parallel to CD. Then हमने प्रूव किया कि co-interior angles are supplementary, so therefore EF is parallel to CD. Yes, therefore AB will be parallel to. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आपस में भी पैरेलल है. समझ में आया बच्चों या नहीं आया? Yes or no? Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्या? Right, बच्चों, क्वेश्चन is AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and y ratio z equal to 3:7. Find x. X find out करना है. Please do this. एक मिनट
हाँ जी बच्चों, हो जाएगा ये? कीजिए क्वेश्चन बच्चा, ट्राई कीजिए इसको। ये ग्रुप डिस्कशन की क्लास नहीं है, इंडिविजुअली यू हैव टू डू इट। डन। कितने लोगों ने किया? रेज कीजिए हैंड अपने, बाकी लोगों को भी करने दो जरा। प्लीज लेट द अदर्स आल्सो डू इट। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में कितने लोगों ने किया है? अरे सेक्शन बी कितना शोर कर रहा है? सेक्शन ए वाले, हाँ जी बच्चे बताइए किस किस स्टूडेंट ने किया है? रेज योर हैंड। सेक्शन ए, आप ए में हो बेटा जो रेज किया है? आप तो बी में हो ना। आपको सेक्शन ए वाले मैं आपको एक हिंट देता हूँ जरा। नाउ दिस एंगल इज वाई, दिस विल आल्सो बी वाई। नाउ प्लीज डू दिस। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इन दोनों को को-इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाओ आप। प्लीज अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ co-interior angle in angle y and z. Since y and z are supplementary, so therefore sum of y and z will be 180, और इनकी रेशियो गिवन है 3 and 7, so let the angles be 3k plus 7. Please no talking बच्चों, please no talking. is 18 डिग्री, तो y कितना है बच्चे? 3k और z कितना है? 7k, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3 into 18, 4 डिग्री। z is equal to 7 into 18, 126 degree. 120 degree. 26 आ गया बच्चे। X. ठीक है बच्चे? Hexagonal alternate angle. अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं थी, और इजी हो सकता था ये। देखो और इजी कैसे हो जाएगा? Yes, to extend नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग। एंगल z है बच्चे, ये वाला भी z हो जाएगा। Why? Because these are corresponding angles. Yes. Yeah. So z is equal to x also, alternate angles. So Yes. therefore z will be equal to right? Clear? Is this clear? So therefore x will be 126 degree. Any doubt बच्चों? Sir, it means कि जो x की वैल्यू है 126. 126 डिग्री बेटा। Yes. x is 126 डिग्री। हाँ जी चलें आगे अब हम। हाँ जी स्टूडेंट, shall we move to the next question? Sir, yes. क्या खा के आए थे बेटा आप लोग 9B वालों? खा के आए हो आज आप लोग? यस हाँ जी, क्या खा के आए हो आज?
चुप नहीं हो रहे हो आप लोग? This point is x, this point is y, this point is z. This is 50 degree. Oh. Okay, now you have to find angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Okay. Now it is given L is parallel to M is parallel to N. Right? Please do this. Sir, done. Yes, sir. Sir, done. गुड, वेरी गुड. वेट कीजिए एक मिनट जरा, बाकी लोगों को भी करने दो जरा. And no talking also. No talking. कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मारनी शुरू कर दो. हाँ जी बच्चों, प्लीज डू दिस. जिन लोगों ने नहीं किया, वेरी सिंपल टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगने हैं यहाँ पे बच्चे. एक लगना है अल्टरनेट एंगल का, एक लगना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का. बस दो कॉन्सेप्ट के साथ आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. Sir, vertically चलिए अपोजिट के बिना भी काम चल सकता है बच्चे यहाँ पे. करेंगे लीनियर पेयर लगेगा बच्चे सबसे पहले. देन यू कैन अप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड यस वर्टिकली अपोजिट भी लग सकता है एक जगह पे. How many of you have done? Please raise your hand. Section A से. Section A. How many of you have done? Section A. A. How many of you have done? Ma'am, please check whether the students are doing or not. Section A. Nobody is responding. Have you done it or not, students? जल्दी से फिनिश कीजिए क्वेश्चन को बेटा. सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए. दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री because it's a linear pair, right? Angle 4 plus 50 degree is equal to आ गया बच्चों 80 minus 50, that is 130 degree, right? Now angle 4 is equal to angle 1 because angle 1 equal to angle 4, corresponding angles. Therefore, angle 1 will be equal to similar angle 1 and
ये भी दोनों बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, opposite angle. Angle 3 is also equal to 130 degree. So 1, 2, 3 and 4 all are 130 degree each. Is this clear, bachcho? Any doubt in section A, section B? Any student have any doubt? Please ask the questions. Sir, no. Right. So we move to the next question. Next question, students. And the students' question is, कीजिए बच्चों क्वेश्चन है। Please do this. Find C. Sir, done. Very good बेटा, very good. हाँ जी, सेक्शन ए से किया, सेक्शन ए से कर लिया सर, वेरी गुड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट और कीजिए जी बाकी। स्टूडेंट्स आल्सो डू इट। Let me see. Sir, done. हाँ जी, कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा प्लीज। सेक्शन ए से फर्स्ट बेंच स्टूडेंट, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सेंटर लाइन वाली स्टूडेंट, सेंटर लाइन में जो स्टूडेंट सेक्शन ए टॉकिंग। हाँ जी बच्चे, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी बेटा, कीजिए जरा, एक्सप्लेन कीजिए इसको। आंसर इज 126। आंसर तो मैंने पूछा नहीं बेटा, एक्सप्लेन करना। ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, आंसर कुछ पूछा गया होता है और आप कुछ और लिख के आते हो। Firstly, we have to 2x plus 3x plus 90 degree. Then the value of x is 8. Why 2x plus 3x equal to 90 degree? Why? बेटा एक्सप्लेन करो ना इसको पूरा प्रॉपर्ली। 2x plus 3x because the values are given in a ratio. Then we have to add x with them. 2x plus 3x plus 90 degree is equal to 180 because the angles on a straight line is equal to 180. Then the value of x is 18. बोलते जाओ आप बेटा। आगे बोलते जाओ आप। The value of x is 18. आगे बोलिए सर। 3x is बोलिए बेटा। value of b is 54. Value of b is बी आगे बेटा, बोलिए आगे। 54. b plus c is equal to 180.
C plus C is equal to 180. linear pair. वेरी गुड, यहाँ पे लिखना है लीनियर पेयर. 54 plus C. C is equal to 180 minus 54. How much? Very good, madam. Very good. Sit down. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आना चाहिए आप लोगों को. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर ओके आपका बेटा खड़े हो जाओ जरा. क्वेश्चन तो दिखा नहीं, आपने कैसे डन कर दिया? हो सकता है मैंने कुछ चेंज करना हो इसमें क्वेश्चन में. आप इतनी तो पेशेंस रखो ना बेटा, क्वेश्चन लिखने दो मुझे. I may change this question ना. हाँ जी बेटा, अभी ऐसे आप खड़े रहेंगे और मुझे एक्सप्लेन करो जरा इसको कैसे करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में. बताइए क्वेश्चन क्या है. बैलेंस इसमें है कि जो ROS है वो इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस PoS. QoS is equal to हाफ ऑफ QoS माइनस PoS. माइनस PoS. बताइए कैसे करेंगे इसको, एक्सप्लेन कीजिए जरा. Yes. चलिए एक्सप्लेन कीजिए कैसे करना है. सर पहले जो PoS हाँ जी, PoS plus ROS is equal to 90 degree. QoS plus ROS is equal to 90 degree, right? Very good. Then ROS is equal to 90 degree minus PoS. ROS is equal to 90 degree minus PoS. हाँ जी लीजिए जी. Sir, now we have to add ROS both on both the sides. ROS both the sides. हाँ जी, Yes. ROS दोनों तरफ ऐड करना है. चलो कर देते हैं जी, आप बोल रहे हो तो. चलो जी, ROS मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया. राइट. Sir, तो इधर हो जाएगा 2 ROS equal to वो ROS इक्वल टू जो ROS का 90 डिग्री है प्लस होके QoS माइनस PoS हो जाएगा. देखिए बच्चों, ये ROS है, ये 90 है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 2S बन रहा है. तो इन दोनों को ऐड करके, मतलब ये दोनों टर्म्स को ऐड करके, कैन आई राइट एंगल QoS माइनस एंगल PoS. अब ये 2 तो आपका आंसर प्रूव हो गया. ROS is equal to half of QoS minus PoS. Very good, beta. Please sit down. Very good. Right? So is this clear to everyone? देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको रिलेशन डेवलप करना है तीनों में. राइट? ये टोटल एंगल जो है, दिस इज द सम ऑफ ROS प्लस 90 डिग्री. दोनों को मिला के भी 90 बन रहा है. राइट? तो आपने क्या किया, ROS की वैल्यू निकाल ली है और उसमें ROS को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों को ROS ऐड कर दिया दोनों तरफ. राइट? We know that if we add the same term in a linear equation, its value does not change. ठीक है? हमने किया था, कहां पे किया था ये वाला पॉइंट? In an equation, if you add equal added to the
बोथ साइड्स मेक इट इक्वल। कहाँ पे किया बच्चे ये? जो ROS is equal to 90 degree minus angle POS is equal to यूक्लिड ज्योमेट्री में किया है ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड्स इट रिमेन्स इक्वल, क्या ना। हमने अगर दोनों तरफ ROS ऐड कर दिया तो देयर इज नो डिफरेंस। यस, तो ROS plus ROS become 2ROS, 90 plus ROS becomes QOS, right, minus POS। यही चीज हमें प्रूव करनी थी बेटा। इज दिस क्लियर? जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज नोट डाउन। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर इन दिस? Yes. Any students will finish off here only. So thank you very much for joining. Thanks a lot to all the teachers present.